Hello candidates, welcome to YouTube channel of Gyanam. We are going to start a new batch for JIB and CIB students. Anybody interested to join our batch, our YouTube batch as well as our paid programs, those candidates are most welcome. This is our first interaction with the JIB and CIB prospective candidates. We are going to start our first YouTube lecture, that is on bond valuation. Very important topic for JIB as well as for CIB. In accounting part of JIB and in bank financial management of CAIIB, this topic is very important. So I am going to take a lecture on present value of bond. According to the latest trend and according to the last year's examination pattern, many questions are being asked on bond valuation. Practically, specifically on present value, which is also known as intrinsic value of the bond, as well as on YTM, yield to maturity. So our today's topic is present value or intrinsic value of the bond. I hope this class will help you to understand the basic concept of bond valuation. We are from Gyanam and you all know that Gyanam is a renowned institute in Chandigarh, and we give the coachings and training to the bank prospective candidates as well as bank employees. So to start with the topic of bond valuation, first is the meaning of bond. What is the meaning, general meaning of bond? You all know bond means debentures, a debt instrument, a long-term debt instrument. Every business organization, it may be a manufacturing company or a trading organization, or it can be a service sector industry. All industries, all manufacturing sectors, all traders, they require capital, long term as well as short term, to run their business. And the capital is divided into two parts. One is owner's capital, which is also known as net worth, and second is the borrowed capital. And one of the most important source of borrowed capital, long-term borrowed capital, is bond. Bond is a second name of debenture. It represents debt. ये उधार की कैपिटल है. It is a borrowed capital. लॉन्ग टर्म कैपिटल है ये. तो जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो वो मार्केट में बॉन्ड्स इशू करते हैं. Whenever any organization, any company wants to raise borrow capital from the market, they issue bonds, debentures. Like IPO, initial public offer, जब भी कंपनी किसी पब्लिक इशू में जाती है तो लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट करती है शेयर्स के लिए. सिमिलरली इसी तरीके से when company want to raise borrowed capital for a long period of time, companies issue bond. Bond means borrowed long-term fixed maturity instrument in which company take a borrowed capital from the general public, pay interest, उन पर इंटरेस्ट पे करती है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बॉन्ड्स हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड. उसके बाद बॉन्ड्स को की रिडम्पशन हो जाती है, हम उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं. जब तक रिडम्पशन नहीं होती तो कंपनीज बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, इंटरेस्ट पे करती है, जिसे हम कूपन बोलते हैं. सो बॉन्ड की क्या बेसिक डेफिनेशन है? सबसे पहले बॉन्ड इज अ फिक्स्ड income security, is a debt security instrument which is issued by the borrower for the purpose of raising the capital.
जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है तो कंपनीज शेयर्स के साथ साथ बॉन्ड्स भी इशू कर सकती हैं। एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज है कंपनी का, और ये एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी इसलिए इशू करती है ताकि वो अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। एंड इट इज सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द जनरल पब्लिक। इन्वेस्टर इसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर सेफ कंपनीज में पार्क करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉन्ड के, इससे आपको सारा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आप सबको पता है दो तरह की मार्केट्स हैं हमारे इंडिया में, वन इज मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। जब भी किसी कंपनी ने या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं, और जब भी किसी कंपनी ने शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती हैं। और जो बॉन्ड है वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इससे कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। सेकंड, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अभी आपको बताया है, इससे कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। इन रिटर्न कंपनी प्रोवाइड्स फिक्स इंटरेस्ट, इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अनलेस बॉन्ड्स आर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट। नॉर्मली जो नॉर्मल स्ट्रेट बॉन्ड्स हैं उनमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जिसे हम कूपन बोलते हैं, कंपनी उसको पे करती है, तब तक पे करती है जब तक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी नहीं आती। मैच्योरिटी डेट तक कंपनी उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है। एनुअल इंटरेस्ट भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। ऑन मैच्योरिटी द कंपनी रीपे, जिसे हम रिडम्पशन बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। रिडम्पशन पर कंपनी जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तो कंपनी बॉन्ड होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है एट पार और एट प्रीमियम। बॉन्ड्स है फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, अभी बताया आपको, फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू, एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इशू की होती हैं, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ issue of the bonds. Bonds are generally redeemed at par. Bonds can be issued at par or at premium or at discount. Issue तो premium पर भी हो सकते हैं. Premium means more than the face value or par value of the bond. It can be issued at discount less than the par value or the face value of the bond. Or it can be issued at par, that means at face value. Bonds are traded in the stock market. We can sell, these are easily transferable like shares. Bonds are also freely transferable with the help of stock exchange or with the help of secondary market. Now there are various types of bonds which we will discuss in the later classes. Reason being, today's topic is basically on present value of the bond, that means the practical aspect of the bond. So वैसे जो बॉन्ड्स के टाइप्स हैं उनमें वी हैव स्ट्रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड परपेचुअल बॉन्ड्स, जिसे हम रिडीमेबल, परपेचुअल एंड रिडीमेबल बॉन्ड्स, दोनों तरह के बॉन्ड्स हम करेंगे। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर लेटर क्लासेस। Now coming to the practical aspect, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, that is present value of the bond. This is very very important. Its second name is intrinsic value of the bond. What is intrinsic value? How we define the intrinsic value? The present value of the bond is defined as the present value of future interest payments and the present value of the maturity value of the bonds, which is discounted at appropriate discounting rate, which is known as KD. ऐसे नहीं हमें समझ आएगा, मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपीज बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की का मेरे माइंड में एक
मैं सोच रहा हूं कि मैं 1000 रुपीज किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा, 1000 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करना चाहता हूं। क्या फायदा है इस प्रेजेंट वैल्यू का, वो कैलकुलेशन के बाद समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं कंपनी के इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे एनुअली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 8% एनुअली, दैट मीन्स मुझे 1000 के बॉन्ड पर 80 रुपीज हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मैं दूसरी बात चेक करूंगा कि इसकी मैच्योरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स, इसका मतलब मुझे हर साल 5 साल तक 80 रुपीज एनुअली मिलते रहेंगे। अगर सेमी एनुअली है तो 40 दो बार मिलेंगे साल में, और अगर एनुअली है तो 80 रुपीज साल में एक ही बार मिलेगा 5 सालों तक। 80 इन द फर्स्ट ईयर, 80 इन द सेकेंड ईयर, 80 इन द थर्ड ईयर, 80 इन द फोर्थ ईयर एंड 80 इन द फिफ्थ ईयर। जब फिफ्थ ईयर मैच्योरिटी आएगी उस टाइम पर मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी कंपनी से वापस लूंगा, कंपनी उसे रिडम्पशन कहती है। तो अगर 1000 मैंने इन्वेस्ट किया है तो क्या पता कंपनी मुझे 1000 ही रिडम्पशन पर दे, मैच्योरिटी पर दे। कई बार कंपनी प्रीमियम पर भी रिडम्पशन कर देती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। सपोज मुझे 1000 ही वापस मिल रहा है तो फिफ्थ ईयर में मुझे 80 रुपए के साथ साथ 80 रुपीज के साथ साथ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे हो जाएगा 1000। अब मैं जो भी मुझे 5 सालों में मिला है उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहता हूं कि इस जो अमाउंट मुझे 5 सालों में मिलनी है उसकी आज की क्या वैल्यू है। उसके लिए मेरे पास एक डिस्काउंटिंग टेबल होता है। जब हम एनुटीज का चैप्टर करेंगे तो उसमें ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि आपको एक टेबल दिया होगा, मे बी 10%, मे बी 12%, उस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 आपको गिवन होगी, या आपको 10% टेबल दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू हम अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 रुपए की। उस प्रेजेंट वैल्यू को जब हम इन सारी अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आज के टाइम पीरियड की, उससे फायदा क्या होगा, उससे मुझे यह पता लग जाएगा कि अगर मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं 5 साल के लिए तो जो भी मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की क्या वैल्यू है। अब सपोज उसकी आज की वैल्यू, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज उसकी आज की वैल्यू 990 रुपीज है, 990 रुपए जो भी मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। अब मैं चेक करूंगा कंपनी मुझे वो वाले बॉन्ड्स किस रेट पर इशू कर रही है। अगर कंपनी मुझे सेम बॉन्ड्स को 1000 में देती है तो मैं नहीं लूंगा, 1020 में देती है नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे तो 990 की रिटर्न मिल रही है, तो मैं क्यों 1000 जब 1020 में लूं। अगर कंपनी मुझे 990 या 990 से कम पर इशू करेगी देन आई विल इन्वेस्ट। सो द प्रेजेंट वैल्यू हेल्प्स द पोटेंशियल इन्वेस्टर टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स और नॉट। Present value is nothing but the present value of all future payments which a company is going to give to the potential investor discounted at appropriate discounting rate। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टर भी कर लेता है, कंपनी भी कर लेती है। इन्वेस्टर को तो ये पता लग जाता है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी को ये पता लग जाता है कि हमें किस रेट पर बॉन्ड्स को मार्केट में फ्लोट करना चाहिए। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा रेट पर करेंगे तो इन्वेस्टर नहीं परचेज करेगा, उससे कम पर करेंगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ये देखिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है, इट इज कूपन, कूपन मींस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 प्लस KD, KD होता है कॉस्ट ऑफ डेट, इट इज डिस्काउंटिंग रेट, इसे हम डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। ये हमारा एक डिस्काउंटिंग रेट है, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होता है, जिसको हम K फुट में D है, KD से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने अभी 10% रखा है। सिमिलरली 1 प्लस KD रेज टू द पावर 2 सेकेंड ईयर का इसका कूपन, ऐसे चलता रहूंगा 5 साल तक अगर लाइफ है तो 5 सालों की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, और फिफ्थ ईयर में मुझे कूपन के साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी। जब ये मैं सारा सम टोटल कर दूंगा तो वो बन जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। टेक एन एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल रखा है, आपकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं।
एन इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेज 3 ईयर्स, मैंने सिर्फ 3 ईयर्स का बॉन्ड रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली क्लियर हो जाए। 1000 का बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू पार वैल्यू 1000 रुपए है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और मैंने जो डिस्काउंटिंग रेट रखा है वो 14% रखा है, 14% रखा है। आपको इस रेट में और इस रेट में कंफ्यूजन नहीं करना। मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों रेट्स में कंफ्यूजन कर लेते हैं। एक तो है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जिसे हम कूपन बोलते हैं, जो कंपनी एनुअली अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे कर रही है, और एक डिस्काउंटिंग रेट है जिस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकाल के और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा बॉन्ड के साथ जो वैल्यू दी है वो कूपन है, और जो डिस्काउंटिंग जब मार्केट रेट दिया हुआ है वो डिस्काउंटिंग रेट है। तो मुझे अगर मैं 1000 रुपए के 1000 के बॉन्ड्स इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। फर्स्ट ईयर 100 रुपीज, ये देखिए, पहले आप अपने सारे इंटरेस्ट लिख लीजिए। सेकेंड ईयर अगेन 100, थर्ड ईयर अगेन 100, प्लस माय प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रीपेड, मेरा 1000 भी वापस हो जाएगा। दैट मीन्स इन द थर्ड ईयर आई विल गोइंग टू रिसीव 1100। कैसे? 100 रुपीज इंटरेस्ट एंड 1000 माय प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसे मैं डिस्काउंटिंग रेट, जिसको KD या R बोलते हैं, कितना है? 14%। 14 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 0.14। 1 प्लस रेट, ये देखिए 0.14 फर्स्ट ईयर का है ये, तो 1.14 हो गया। सेकेंड ईयर 1.14 रेज टू द पावर 2, 1.14 रेज टू द पावर 3। जितने साल का आपने निकालना है, नीचे 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट रेज टू द पावर n। इसको मैंने फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकेंड ईयर निकाल लिया, थर्ड ईयर निकाल लिया, और इसको मैंने टोटल कर दिया। तो दैट मीन्स 907.125 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, जो मुझे 3 इयर्स में कंपनी से मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 907 रुपए है, 14% डिस्काउंटिंग रेट पर। द अमाउंट which I am going to receive for the next 3 years, its present value is 907.125। अगर मुझे कंपनी 907 या इससे कम रेट पर बॉन्ड इशू करेगी तभी मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स। सो हाउ टू कैलकुलेट? सिंपल, it is coupon per annum divided by 1 plus rate raised to the power n. This is discounting rate. Similarly, in the second year, coupon upon 1 plus rate raised to the power n, second year का चलता चलता लास्ट ईयर में इंटरेस्ट प्लस कूपन प्लस मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट रेज टू द पावर n। n उस साल का जो भी थर्ड ईयर है, फिफ्थ ईयर है, और उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इसे टेक्निकली पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो पहले आपने क्या करना है? मैच्योरिटी देख लेनी है, तब तक का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते रहें, लास्ट ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू भी ऐड कर दें, और जो डिस्काउंटिंग रेट है 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड कर दें रेज टू द पावर n से, और उससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू निकल आएगी। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। इसी के बेसिस पर अगर मुझे सेमी एनुअली कैलकुलेट करना हो, सपोज इंटरेस्ट इज गिवन सेमी एनुअली, दैट मीन्स 50 रुपीज एंड 50 रुपीज 2 टाइम्स इन अ ईयर, तो मैं कैसे करूंगा? 50 50 50 50। अब मुझे 3 टाइम्स पेमेंट नहीं होगी, मुझे 6 टाइम पेमेंट होगी। ये 1 साल में, ये 2 साल में। 50 50 प्लस लास्ट में मुझे 1000 भी। ये सारे मेरे कूपन है, तो मैं पेमेंट्स 2 टाइम्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद आफ्टर एवरी हाफ ईयर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिवाइडेड बाय, अगर तो ये एनुअल इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग रेट दिया है फिर तो 14 को भी आपको हाफ करना पड़ेगा। अगर उसने लिख दिया एप्लीकेबल डिस्काउंटिंग रेट तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। दिस इज फर्स्ट
दिस इज अगेन सेकंड, ऐसे करते करते आप लास्ट तक उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो एनुअली और हाफ एनुअली दोनों में इतना ही डिफरेंस है। एनुअली में 3 इयर्स है तो 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली है तो आपको 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट पर और उसे सम टोटल कर देंगे तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। इससे आपको ये पता लग जाता है कि हमें इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट पर कंपनी हमें बॉन्ड्स इशू करती है तो हमें उस इशू को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कंपनी उससे ज्यादा रेट पर हमें इशू करेगी, वी विल डिनाई, इट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमें जो रिटर्न मिलने वाली है वो कम है जितना हमने इन्वेस्ट किया एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। आई होप आपको बॉन्ड वैल्यूएशन का इंट्रिंसिक वैल्यू का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स जैसे YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैकुलेस ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जैसे टिपिकल टॉपिक्स करेंगे जो कि आपके CIB और JIP के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप हमारे साथ YouTube के चैनल पर इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और हमारे लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।